ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, पर ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਮਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਖਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल केवल खंड ओडा जिला सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ। जो हमारा राजकीय प्राथमिक पाठशाला केवल है, इसमें मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि आज विश्व की जो समस्या है पोल्यूशन है मुख्य समस्या, और जो भारत के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, पूरे विश्व के पृथ्वी की समस्या है। जो ग्लोबल जो टेम्परेचर है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है प्रतिदिन, और आने वाले दिनों में जो बड़ी भयंकर समस्या लेगा और आदमी के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर हम काम कर रहे हैं कि इसमें जो पराली है, चावल जिसको हम पंजाबी में धान भी बोलते हैं, चावल की पराली है, बायो बेस्ड है, फसली अवशेष हिंदी में कहते हैं इसको। जे एक मतलब किसान इसमें से चावल निकाल लेता है, उसमें जो बायो वेस्ट बच जाता है उसको जला देता है, और जे जलाने के साथ धुआं पैदा होता है, कार्बन पैदा होती है और बहुत सारी जहरीली गैसें पैदा होती है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਧੂਆਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ जे हम एक बच्चों के लिए एक हमारे जो पाठ्यक्रम के अंदर है कला समेकित शिक्षा, कला समेकित की शिक्षा के अंदर एक कला को विकसित करना, उसमें क्या है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसमें सामाजिक दायित्व, सामाजिक विकास और समाज की समस्याओं के बारे में जागरूक करना। और उसमें क्या है कि जो पराली है, जो मतलब इस मोटे तौर पर संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि पराली को जो बायो बेस्ड है उसको ज़मीन के ऊपर बिछा दिया जाए, एक मोटी तय 3-4 इंच मोटी तय बिछा दी जाए। इससे क्या होगा कि एक तो जितना भूमि के अंदर इसकी नमी है, पानी की नमी है, वो नहीं वेस्ट नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी, हाँ वेस्ट नहीं होगी। और उसके बाद जो हवा में तापमान में आर्द्रता है, नमी है, उसको उल्टा जो पराली ज़मीन के अंदर खींच कर ले जाएगी। और आप कहीं भी देख सकते हो, जो देखो ज़मीन गिल्ली मिलेगी आपको, ज़मीन मतलब इसके नीचे की जो ज़मीन है वो गिल्ली मिलेगी आपको। और दूसरी बात है कि जैसे जो हमने किचन गार्डन बनाया है, बच्चों का खाना मिड डे मील के लिए लहसुन है, चना है, पालक है, मेथी है, गाजर है, वे हम बच्चों को अच्छा ताज़ा भोजन सर्व कर सकें। इसमें क्या है कि एक तो इसमें खरपतवार नहीं होगा,
आजकल खरपतवार नहीं होगा और खरपतवार के साथ इसमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा इसकी जो मित्र कीट है पृथ्वी के अंदर जो इसको बचा के रखते हैं भूमि को, जो उर्वरा शक्ति को, वो मित्र कीट भी नहीं मरेंगे इसके अंदर, वो आसानी से अपना जीवन सर्वाइव करेंगे। दूसरी बात कि जो धुआं है इसके ऊपर जो हम इसको आग लगाते हैं तो धुआं है जो वो नहीं निकलेगा। और इसको स्कूल के अंदर मैं इसलिए आपने जो प्रश्न किया था कि स्कूल के अंदर क्यों लेकर आए, कि आमतौर पर जो बच्चे हैं वो समाज में जो परिवेश में देखते हैं कि जितना भी बायो वेस्ट है, फसली अवशेष है, उसको जला दिया जाता है और बच्चों ने आमतौर पर जलाना ही सीखा है, उसका सदुपयोग करना नहीं सीखा। तो जो स्कूल में हमारे पास सैकड़ों बच्चे आते हैं तो बच्चे देखेंगे कि इसका कितना सदुपयोग किया जा सकता है, बायो वेस्ट को, फसली अवशेष को देखेंगे। इसको पराली के अंदर, फसलों के अंदर इसमें लेबर की ज़रूरत की कमी आएगी। जो स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट खेती, स्मार्ट होम, स्मार्ट मार्केटिंग, स्मार्ट बिजनेस को लेकर हम काम कर रहे हैं कि इसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट एनवायरनमेंट को लेकर इसमें क्या है कि लेबर की ज़रूरत, अगर किसान या कोई भी आदमी, कोई माली है, कोई किचन गार्डन है, कोई बागवान है, वो उसमें लेबर की कमी कम महसूस होगी क्योंकि खरपतवार नहीं होगा, उसको कल्टीवेशन की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, पानी की बहुत ज़्यादा आसमान, जो वायुमंडल के अंदर आर्द्रता है उसको उल्टा खींच के भूमि के अंदर ले जाएगी जो पराली, गिल्ला ज़्यादा टाइम हाँ जी। और जब हम देखते हैं कि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन को भी हवा में से जे खींचेगी, नाइट्रोजन को भूमि के अंदर ले जाएगी। जे नाइट्रोजन आजकल देखो इन दिनों में यूरिया की कमी है, किसान कितने भटकते फिर रहे हैं, तो यूरिया की बिल्कुल जिस खेत के अंदर जो पराली बिछा दी जाएगी, यूरिया की 1% भी, एक दाना भी जरूरत नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल जी जी। जिवें तुसीं दस रहे हो कि बच्चों ने जिहड़ा हैगा वो स्कूल तो सीखना, घर तो सीखना, तो जो बच्चे इस जलाउंदे देखते तो बच्चों इहदा हल इक्को ही दिसदा कि इहनूं बचाओ, तो इहदा हल यही है। तो जिस तरह जगदीश जी दस रहे कि इहदा हल जिहड़ा है बच्चों नूं असीं मोटीवेट कर रहे हैं कि इहनूं देख के बच्चे जिहड़ा हैगा घर दे विच इहदा यूज़ करन ते अपने घरदिआं नूं जाके कहण कि स्कूल दे विच सिखाया जा रहा है, तो उस तरीके नाल जिहड़ा इहनूं कीता जा रहा है। जगदीश जी इत्थे ही नहीं, जिस तरह थोड़ा चਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, जगदीश जी दस रहे ਸੀ कि खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ। हाँ जी, जो पानी, लेबर की मैनेजमेंट है, एक जो नई प्राकृतिक खेती है, जो प्राकृतिक खेती में जिसमें कल्टीवेशन का बहुत ज़्यादा खर्च आता है, तो जीरो टिलिंग आजकल इसको नया ट्रेंड है कि खेती को जीरो टिलिंग पर ले जाओ, उसको मैनेज करो, स्मार्ट खेती करो। बच्चे जो देखेंगे, जो जैसे हम कहते हैं कि आज का बच्चा कल का नागरिक, वो बच्चा स्कूलों के अंदर जो सीख कर जाएगा तो उसमें कल को वो नागरिक बनेगा, कोई किसान बनेगा, कोई एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर बनेगा, कोई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बनेगा, कोई सरपंच बनेगा, कोई नेता बनेगा। वो आगे मैसेज देंगे, समाज में अंदर अच्छी भूमिका निभाएंगे वातावरण को लेकर, पानी को लेकर, भूमि को लेकर। जो जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वातावरण संरक्षण को लेकर जो काम किया जा रहा है, तो जो इस पानी की बहुत बड़ी, जो पानी भी आज विश्व की समस्या है, इसको लेकर काम किया। इधर आओ, मैं दिखाता हूँ। एक जो हमने स्कूल के जितने भी पौधे हैं इनको ड्रिप से जोड़ दिए गए हैं। इसमें 2 प्रकार के ड्रिप हैं, ऑनलाइन ड्रिप और इनलाइन ड्रिप। जो इनलाइन ड्रिप है इसमें 70% पानी की कम यूज होता है, 30% पानी यूज होता है जो फ्लडी पानी के मुकाबले, 70% पानी की बचत होती है। जिस तरीके नाल तुसीं इहनूं यूटिलाइज कर रहे हो। हाँ जी सर, जे हमारे जहाँ बच्चों का खाना, सैकड़ों बच्चों का स्कूलों के अंदर मिड डे मील में खाना बनता है, उसमें सरकार ने हमें आदेश दिया है कि बच्चों के लिए एक किचन गार्डन तैयार किया जाए, जिसमें बच्चों को लहसुन, प्याज, मेथी, धनिया, पालक वगैरह स्कूल में अगर संभव हो, जहाँ कहीं भी संभव है तो वहाँ पैदा करके ताज़ी बच्चों को खिलाई जाए। तो हमने सोचा कि जो ऑर्गेनिक, हम जैविक बच्चों को खिलाएंगे, कोई इसमें कीटनाशक नहीं होगा और दूसरा कोई खरपतवार नाशक नहीं होगा, जो बच्चों की सेहत के लिए। इसमें ये दिखाते हैं, ये लहसुन है, ये लहसुन बिजाई की है हमने, गार्लिक जिसको, ये औषधीय पौधा है, हम सब्जी वगैरह में प्रयोग करते हैं। इसमें हमने लहसुन लगा के कुछ नहीं किया, पानी
भी नहीं लगाया, ऊपर पराली बिछा दी, ऊपर से थोड़ी बरसात होगी। ये देखो इसके अंदर मल्चिंग, इसको मल्चिंग बोलते हैं। ये मल्चिंग, ये कीट आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे मित्र कीट पैदा हो गए। ये देखो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे ये कीट, ये देखो ये कीट मतलब ऐसे मित्र कीट पैदा हो रहे हैं जो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए हुए हैं। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी। नाइट्रोजन खाद है जो मुख्य तौर पर जे चने की क्यारी है, हमने चना बीजा है बच्चों के भोजन के लिए। इसमें भी देखो मतलब इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कीटनाशक की ज़रूरत नहीं है। उल्टा मतलब जो आसमान के अंदर वायुमंडल के हवा के अंदर नमी होती है उसको जे अवशोषित करती है। और दूसरा के जो जितना भी नाइट्रोजन है वो भी हवा में से लेकर पौधे को देती है ये पराली। और दूसरा है कि जो इसको आग लगाने की किसानों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बच्चों को एक मोटिवेशनल प्रोजेक्ट है जो हमारा, भी बच्चों को पता चले कि जो पराली को हम जला रहे हैं, हमारे किसान जला रहे हैं, उसको आने वाले भविष्य के दिनों में उसका सदुपयोग कैसा किया जाए। ये हमारे स्कूल के अंदर हमारे पास 25-30 प्रकार के फूल हैं, 25-30 प्रकार के फूल है जो हम अपने आस के जो अपने क्लस्टर के स्कूलों में भी बांटते हैं इसको पौधों को। जो फूलों की पौध है इसको जो पराली हमने बिछा रखी है इसके ऊपर लाइनों में लगाएंगे, तो ताकि आने वाले दिनों में खरपतवार भी नहीं होगा। और इस पराली को पूरे हम अगले 1 महीने तक आपको दिखाएंगे कि इस पराली को पूरा फूलों से ढकी हुई होगी और खरपतवार भी नहीं होगा और सुंदर फूल, तरह तरह के फूल लगेंगे इसमें। फूलों को लाइनों में लगा दिया जाएगा, जिस मतलब बड़े सुगंधित फूल है और ऐसे ही है। जिस तरह जी घट पानी नाल ते तुसी किस तरीके नाल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੌਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ 'ਚ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ समस्या ਉਹਦਾ निजात पाई जा सके। हाँ जी सर, ऐसा है कि हम तो सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं। मैं हरियाणा सरकार, भारत सरकार और शिक्षा विभाग से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखो हमारे स्कूलों में बच्चे आते हैं, तो बच्चे जो स्कूलों में जो जैसा वातावरण होता है वैसे ही सीख के जाते हैं। वो आगे देश के भविष्य हैं, नागरिक हैं, आज का बच्चा कल का नेता जो कहावत है, उसी ढंग से कि बच्चे सीखेंगे, आने वाले वो देश के नागरिक बनेंगे। तो उन्होंने क्या करना है, पराली को कैसे संयोजन करना है, इसका प्रबंधन कैसे करना है। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि जो सरकार या शिक्षा विभाग स्कूलों के अंदर एक प्रोजेक्ट दो, जिस स्कूल की जितनी भी समर्था है उसकी 100 वर्ग मीटर 200 वर्ग मीटर में एक पराली को का प्रबंधन करने का एक प्रोजेक्ट दिया जाए, जिसमें पराली को फूलों के तौर पर, किचन गार्डन के तौर पर या बागवानी के तौर पर एक उसको अब मतलब ही उसका प्रबंधन करके उसका सदुपयोग करके सिखाया जाए, ताकि बच्चे आगे कोई किसान बनेगा, कोई खेतीबाड़ी ऑफिसर बनेगा, कोई कुछ इंस्पेक्टर बनेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। वो आने वाले दिनों में इस समस्या, हमारा देश इस समस्या से पर काबू पा सके। दूसरी बात है कि पानी भी एक बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए और विश्व के लिए। पानी का भी प्रबंधन होगा, भूमि का संरक्षण होगा, वातावरण का संरक्षण होगा। इस बात को लेकर हम आगे आपको पानी का एक हमने ड्रिप सिस्टम पे ऊपर काम किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें 70% पानी की बचत है। आमतौर पर जितना हम फ्लडी पानी में लगाते हैं उससे 70% पानी की बचत है। ये देखो हमने जब स्कूल के अंदर बहुत सारे पौधे, जब फूल आपको दिखेंगे, और सभी पौधों को हमने 70% पानी बचत करके ये ड्रिप से जोड़ रखा है। ये एक इन लाइन ड्रिप लाइन है, जी इसमें 15-15 इंच पर 12 इंच पर ड्रिप लगे हुए हैं इन लाइनर। तो ये पौधों के साथ बिछा दी जाती है और पौधे जो फूलदार पौधे मतलब जितने भी मतलब फूलदार या फलदार या छायादार पौधे हैं उनके अंदर पानी की बहुत सारी बचत है।
इस बात को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में इस देश के सभी बच्चे, विश्व के सभी बच्चे इस विषय को समझें और इसको प्रबंधन करना सीखें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦਿਓ। हाँ जी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला केवल में हम टीचर हैं, जितने भी टीचर हैं सभी टीचर बड़ी तनदेही से काम करते हैं। बच्चों के शैक्षणिक कार्य हो, स्कूल को मेंटेन रखने की बात हो, पौधों का काम हो, इसमें एक आदमी ना मैं और कोई भी आदमी अकेला उसमें पूरी भूमिका नहीं निभा सकता, उतने अच्छे परिणाम भी नहीं दे सकता। तो जिसके लिए हमारे समूह स्टाफ का पूरी भागीदारी रहती है और इसके लिए हमारे जे बीना मैडम जी हैं, जे प्राथमिक शिक्षक हैं, जे रीना मैडम है, जे हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं, जे रीना यादव जी हैं, हमारे सहयोगी हैं, जे भगवान जी हमारे लिपक हैं, क्लर्क हैं, जो सिकंदर सिंह जी लेक्चरर पंजाबी हैं और इनका भी सहयोग हमें समय समय पर रहता है। तो जो मतलब कि फूलों को पानी लगाना, पौधों की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, उनके पेरेंट्स से लगातार बात करना, इन सभी विषयों को लेकर पूरा स्टाफ हमेशा हाजिर रहता है और पूरी पॉजिटिव सकारात्मक मूड के साथ ये काम करते हैं। बड़ी खुशी खुशी जिसको जो काम कह दिया बड़ी खुशी खुशी करते हैं और कहने की तो ज़रूरत ही नहीं, नौबत ही नहीं आती। जिसको लगता है कि किसी बच्चे को ट्रीट करना है, किसी पेड़ पौधे को ट्रीट करना है, बिल्डिंग को ट्रीट करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जहाँ कोई भी किसी भी कंपोनेंट पर काम करना है, तो सभी स्टाफ सदस्य खुशी खुशी हाजिर रहते हैं और हर काम अपडेट रहता है। इसके लिए मैं पूरे समूह स्टाफ का बहुत बहुत आभारी हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡੀਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਏ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਪੌਦੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। शुक्रिया।